ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ ਓਏ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ ਓਏ ਗਰੀਬ ਮਾਰਦੇ ਓਏ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਗੰਜਿਓ ਓਏ ਗੰਜਿਓ ਗਰੀਬ ਮਰ ਗਏ ਗਰੀਬ ਮਾਰਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਓਏ ਗੰਜਿਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰਤੇ ਓਏ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਓਏ ਚੋਰੋ ਗੰਜੇ ਚੋਰ ਓਏ ਮੁੜ ਵੇਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ ਮਾਰਦੇ ਗਰੀਬ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਡੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਫੜਿਆ, ਲਾਲਟੈਨ ਫੜੀਆਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਾਲਟਨ ਸਾਡੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗੰਜਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਚੋਰ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਓਏ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਚੋਰ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੋਰ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਮੈਨੂੰ ਗਏ। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਚੋਰ ਹੈ ਗੰਜੇ, ਚੋਰ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਜਨ ਮੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। और मेरे को जो होया मैं पाकिस्तान लिए कर सकता। ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना है, पाकिस्तान को तबाह करना है। लेकिन जी ये जज्बात है यहाँ लोगों के। इन्होंने यहाँ रोटियाँ बांधी हुई हैं, ये एक टीन का डब्बा पकड़ा हुआ है, लालटेन पकड़ा हुआ है। बिजली आउंदी नहीं, बिल आउंदे आ, बिजली आउंदी नहीं। मैं भजन 1200 रुपया दिहाड़ी कमांदा, मंडी च मजदूरी करदा। मैं अपने घर का गुजारा करा, मेरा घर किराए ते आ। मैं की करा दसो मैनू, तुसी दसो ना कि मैं की करा। मेरे 5 बच्चे, मैं बच्चों को खवावां, घर का किराया देवां, बिजली का बिल देवां, मैं की करा। 1200 की करा दसो मैनू। अच्छा मैनू ये दसो, खान साहब के दौर इत्थे बिजली जाती नहीं सी। ये कहंदे जी खान साहब ने आके खराब की आ। खान साहब मकैनिक है ना, आप ही जाके बंद कर देंगे, आप ही जाके चलाए आउंदे आ। बेड़ा गर्क इन्हां दा कीता होया भुगतिया खान ने। की कहना चाहोगे शहबाज शरीफ के बारे? अपना शहबाज है जेडे प्यो पुत्र। मैं कहना जी या मेरे मालिक या इन्हां नूं पर्दा दे दे ते या सानू पर्दा दे दे। ਇਹੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ, ਗੰਦ ਮੁੱਕੇ, ਇਹ ਗੰਦ ਕੱਢੋ। ਓਏ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੰਦ ਕੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੋਚਦਾ। ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੇਰਾ ਖਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਲਵ ਯੂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਜਿਹੜੇ हुकूमत च बैठे ने, ਜਿਹੜੇ खुद ਨੂੰ शेर कहते ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਇਸੇ ਲਈ ਯਾਰ। 5 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਵੱਧਦਾ ਸੀ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ 60 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਵਧਾਤਾ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? अच्छा ਇਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਰ ਸਾਰੇ ਚੋਰ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਕਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਲੈਣਾ ਜੇ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਜੱਤ ਦੇ ਕੇ ਰੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ? ਭਜਨ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇ
ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੈਦ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਸੋਚਦਾ जी। आप महंगाई के खिलाफ एहतजाज के लिए बाहर निकले हैं। पेट्रोल जैसा कि आप जानते हैं 60 रुपये महंगा हो गया और जो बाकी चीज़ें महंगी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? असल में मेरा जो आवाज़ गला बैठ है ये 25 को आप हमारे से मिले थे फैज़ाबाद में, उसमें जो शीलिंग हुई थी उस शीलिंग की वजह से अभी तक मेरा आवाज़ बुलंद नहीं है। मगर मैं जो पेट्रोल के बारे में आपको कहना चाहता हूँ, जब आप लोग को पौने 2 महीने में 60 रुपये पेट्रोल बढ़ाने नहीं था तो इससे बेहतर तो हुकूमत नहीं लेते। जब खान साहब ने जिस तरह कंट्रोल किया हुआ था, जिसने उस सब्सिडियाँ में 30-34 रुपये दी थी और उसके रूस के साथ जो मायदा चल रहा था 30% कम पे, जब आप लोगों ने देख नहीं था, अगर आप लोगों ने फिर ये हुकूमत पे जब आ नहीं था आपको और एक मुंतखब हुकूमत को जो आप लोगों ने ख़त्म किया एक मरासले से, अमेरिकन मरासले से, तो मैं अमेरिकन से भी कहना चाहता हूँ जो नेटो के 42 मुल्क हैं जिसने अफ़गानिस्तान में 20 साल जंग की है, उस एक मुल्क से पूछे कि उसने 10,000 जाने भी दिए? कभी नहीं। पाकिस्तान ने 80,000 जाने दिए, 100 से 150 अरब डॉलर नुकसान किया है। उसके बावजूद भी अभी हमसे अमेरिका क्या चाहता है? इमरान खान हमें लायक है, इमरान खान हमें मंजूर है, इमरान खान को फिर आना चाहिए, हमारे अदली को भी सोचना चाहिए। नहीं, मुझे ये बता दें, ये जो हुकूमत है ये तो कह रही थी कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई के खिलाफ इन्होंने एहतजाज किया था, तो क्या कहते हैं इनके बारे में? ये तो पीटीओ का ज़माना नहीं है ना, एक चैनल होता था, अभी तो सोशल मीडिया है, बहुत सारे चैनल है। जो बहुत मुफ्त से इस्माइल साहब कह रहे थे 137 से हम नहीं बढ़ेंगे, तो आज वो खुशी खुशी कह रहे 210 पे चला गया पेट्रोल। इस ज़िले में सरासर सुप्रीम कोर्ट से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, मैं आर्मी चीफ से दरख्वास्त करना चाहूँगा इस हुकूमत को बर्खास्त करें, नए इलेक्शन करें। इसका हल यही है कि नए इलेक्शन हो, पाकिस्तान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। मुझे बताएं, जिस तरह महंगाई की जा रही है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, यहाँ आज पाकिस्तानी कौम जिस तरह बाहर निकली है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। हम ये कहना चाहेंगे कि आज से 3.5 साल पहले जब खान साहब की हुकूमत थी तो उसमें जब पेट्रोल 2 रुपये लीटर बढ़ता था तो ये लोग शोर मचाते थे। और हमारा एक KPK का नौशहरा का एक सूबाई असम्बली का एक मिनिस्टर है इख्तियार वली, वो साइकिल पे चल के जाता था कि मैं साइकिल पे जा रहा हूँ। अभी इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आज इन्होंने पेट्रोल एक हफ्ते के अंदर 60 रुपये बढ़ाया है, तो इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? ये क्या कर सकते हैं इस कौम के लिए? ये आए अपने लिए हैं, ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की औलाद जो है ना वो बाहर बैठी हुई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ कहाँ हैं, उसके बेटे कहाँ हैं, शहबाज शरीफ के बेटे कहाँ हैं? क्या ये पंजाब के खेतों में काम कर रहे हैं? ये भी तो बाहर बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब के बेटे तो ना सियासत से उनका कोई तलक है। खान साहब कहते हैं कि मैं ही हूँ सियासत में, मैं गया तो मेरा रिश्तेदार नहीं आएगा। ये महंगाई जो इन्होंने की है, ये हम कहते हैं कि सरासर नाइंसाफ़ी है इस कौम के साथ। 60 रुपये इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? एक आदमी है जो 800 रुपये दिहाड़ीदार है, आज घी जो हमें 600 रुपये किलो मिल रहा है, पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो गया है, चीनी का रेट देख लें, आटे का रेट देख लें। तो ये इन लोग ये महंगाई आवाम के लिए नहीं आए, ये सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने के लिए आए हैं, उसमें रद्दोबदल करने के लिए आए कि किसी तरीके से जो हमारे ऊपर ये फ़र्द जुर्म आयद हो रहे हैं इसको हम साइड पे करें। नैब के इन्होंने इनमें तबादले किए हैं, FIA में तबादले किए हैं। इनका मकसद ही सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अवाम का इनके साथ कोई तलक नहीं है इस हुकूमत का। ये बता दें, गरीब का क्या हाल है? सर गरीब 600 का घी हो, मैं कहता हूँ ना कि 800 गरीब की दिहाड़ी है। अब मैं मानता इनको ये कि अगर ये 200 का पेट्रोल करते हैं तो गरीब की दिहाड़ी भी 1500 होनी चाहिए थी। अभी गरीब, मैं तो कहता हूँ कुछ अरसे बाद ये गरीब खुदकशियों पे आ जाएगा, क्योंकि जब बच्चों के लिए आटा नहीं होगा, घी नहीं होगा, चीनी नहीं होगी, तो वो फिर देखेगा अपने बच्चों को और वो खुदकशी करने पे मजबूर हो जाएगा। इस गवर्नमेंट का हमें कोई इनसे कोई तवक्को नहीं है कि ये आवाम के लिए कोई रिलीफ ला सके।